Pakistan desires peace with India, as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions. Terrorist groups to target Muslims. The UN Global Counter-Terrorism Strategy has recognized these emerging threats. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass. नमस्कार, आज आप देख रहे हैं हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड सीधे अमेरिका में न्यूयॉर्क से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में आज का दिन बेहद अहम पड़ाव, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत और उसके बाद क्वाड मीट के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए में बोलने वाले पहले वक्ता होंगे। सबकी नजर इस बात पर होगी कि प्रधानमंत्री आज क्या कुछ कहते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर वो किस तरह का पैगाम देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उछाल दिया है उसको लेकर लोगों में जबरदस्त रोष है। इसी के साथ पूरा देश आज सुनना चाहता है कि जब फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने एक तरह से राइट ऑफ रिप्लाई मांगा है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान Peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में बोलने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि इमरान खान की क्या है चाल और किस तरह से बिछेगी आज यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की शक्ति की मिसाल। Peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. दुनिया के सबसे बड़े मंच से ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की जुबान से निकला सबसे बड़ा झूठ है। Reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. और एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरान को कश्मीर पर झूठ फैलाने पर मुंह की खानी पड़ी है। Not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. दुनिया बदल गई है, कश्मीर बदल गया, लेकिन ना तो पाकिस्तान बदलने को तैयार है, ना ही इमरान खान हकीकत स्वीकारने को। यही वजह है कि 75 सालों से जो बेसुरा राग पाकिस्तान का हर हुक्मरान गला फाड़ फाड़ कर गाता रहा, पिछले 3 सालों से इमरान उसे और कर्कश बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इमरान खान ने कश्मीर पर फिर दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश की, वो भी तब जबकि कश्मीर के मुद्दे पर तमाम सहयोगी पहले ही पाकिस्तान को झटका दे चुके हैं। कश्मीर पर झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान कैसे अलग थलग पड़ गया है, वो जानने से पहले सुनिए कश्मीर पर इमरान खान ने आखिर क्या कहा। Pakistan desires peace with India, as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia
is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की ये ढिठाई इतनी बेहुदा हो चुकी है कि इस पर जवाब देना भी अब मुनासिब नहीं लगता। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने वाले हैं। इमरान और उसके झूठ को पीएम कुछ खास तवज्जो देंगे, इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन दुनिया के मंच पर कूटनीति का भी कुछ तकाजा होता है। लिहाजा इमरान के फरेब और झूठ का पर्दाफाश भारत की एक महिला अफसर ने ही कर दिया। This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान के झूठ को फिर बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की इसी फितरत को दुनिया के देश समझ रहे हैं। ये वजह है कि ओआईसी के सदस्य देशों ने भी अब कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में ओआईसी के सदस्य कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन सऊदी अरब और ईरान ने तो कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने भले अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया है, लेकिन उनके सुर बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। दरअसल दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान की असलियत समझ आ चुकी है। एक ओर तो वो मानवाधिकार का राग छेड़ता है, दूसरी ओर आतंक फैलाने वाले के बचाव में खुलकर खड़ा नजर आता है। In countries, it is marginalizing Muslim communities. And we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who ended up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. आतंक का यही एजेंडा इमरान और उसके पहले के पाकिस्तानी हुक्मरान दशकों से अफगानिस्तान पर भी थोपने में जुटे थे। बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब भी हो गए। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तालिबान का हेडक्वार्टर था। क्वेटा शूरा के नाम से तालिबानी फरमान पाकिस्तान से जारी होते थे। तालिबान का हक्कानी गुट पूरी तरह पाकिस्तानी जमीन पर फला फूला। पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में तालिबानियों को डिग्री दी गई और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद यही तालिबानी मंत्री बन गए। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मेहमान बना था। The solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर आतंकियों का रोना रोताया है, लेकिन खुद भारतीय सरहद पर आतंक को पालता पोसता है। आतंकवादियों को शरण देना और उसे बढ़ावा देना पाकिस्तान की नीति का हिस्सा है। यही वजह है कि कश्मीर पर दुनिया के देश पाकिस्तान के झूठे राग से गुमराह होने वाले नहीं। आज तक ब्यूरो। तो कुछ ही देर बाद ये से न्यूयॉर्क में यूएनजीए में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने वाले हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर वो पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे। चीन की नीतियों पर वो क्या कुछ बोलते हैं, कोविड पर पीएम क्या बोलते हैं, सब पर नजर आएगी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आरिफ अब्बासी साहब डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कमर चीमा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे पहले कि हम तूतू में पूरी चर्चा को आगे ले जाएं, मैं चाहती हूं कि आज सही पर्सपेक्टिव में
यूनाइटेड नेशंस जो महासभा है। इस बीच हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। भारतीय मूल के तमाम लोग जो तिरंगा लेकर वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि खुशी की एक लहर तमाम भारतीयों में पहुंचती है, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी में हो या न्यूयॉर्क में हो। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो खुशी की लहर एक देखी जाती है भारतीयों में। वो सभी तिरंगा लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं और भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, पूरे संयुक्त राष्ट्र महासभा को और उसकी इस वक्त की का जो महत्व है उसको सही पर्सपेक्टिव में जानना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क बेजा इस्तेमाल करते हैं उसका प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। भारत के लिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा, जब पीएम यहां पर इन पर्सन खुद आकर बोल रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान से ही वर्चुअली बोला था, जब वो बोलेंगे, पाकिस्तान ने जिस तरह से बोला उसका जवाब होगा। तालिबान की सरकार अफगानिस्तान, सबसे बड़ी बड़ी घटनाएं बीते दिनों हुई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। पीएम का आज यहां पर बोलना सबकी नजर रहेगी। सुधांशु जी, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो इस दौरे पे हैं, ये उनका संक्षिप्त दौरा है, परंतु बहुआयामी दौरा है। आपने देखा कि इसके पहले हिस्से में 5 बड़े सीईओज के साथ बात हुई जो आर्थिक पक्ष पर केंद्रित था। फिर कमला हैरिस के साथ बातचीत हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता रही, जो भारत और अमेरिका संबंधों के मल्टीपल डायमेंशंस यानी बहुआयामों पर केंद्रित था। उसके बाद आपने देखा क्वाड की बैठक हुई, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस प्रकार से सुरक्षा का वातावरण बना है उस पर केंद्रित था। तो मुझे लगता है संयुक्त राष्ट्र में जो आज उनका उद्बोधन होगा वो भारत की जो वैश्विक स्थिति है, वैश्विक हैसियत है, उसके अकॉर्डिंग होगा। निश्चित रूप से इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीतिक पक्षों का तो विचार होगा ही, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, कोविड के उपरांत बदलती हुई विश्व की व्यवस्था का प्रश्न हो, अथवा आर्थिक प्रश्न हो, समान अवसरों का प्रश्न हो, अथवा हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए सभी देशों की सुरक्षा और समान अवसरों का प्रश्न हो, मुझे ऐसा लगता है, और स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ विषयों के ऊपर प्रधानमंत्री जी अवश्य बोलेंगे। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, अरे भाई, जब इमरान खान जी वहां आए ही नहीं, जब मैदान में उतरे ही नहीं, वो दूर से, जिसे हम लोग कहते थे ना कि मैच में एक तरीका होता है कि वो दर्शक की तरह बैठ के कमेंट्री करने वाला, तो उस ढंग से उन्होंने चूज किया है, तो कोई बात नहीं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, या फितरत, हम सब लोगों को ये बात पता है कि आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है। कमर चीमा साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये पूछूंगा कि भाई, जब 5 कंपनीज के सीईओ मिले, उसमें 2 एडोब सिस्टम के शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल भारतीय मूल के थे, हम आपसे पूछें कि कितने पाकिस्तानी मूल के कौन कौन बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं। या अभी वैक्सीन की बात हुई थी, तो भारत ने तो वैक्सीन बनाई, पाकिस्तान ने क्या वैक्सीन के किसी फर्स्ट स्टेज का कोई एलिमेंट्री ट्रायल भी किया था? इसलिए मेरा मानना है वो जमाने चले गए जब भारत और पाकिस्तान की तुलना होती थी, आज भारत और चीन की तुलना है। और जब क्वाड का भी विषय आता है तो इसी के साथ रिलेट करके देखा जाता है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अपना वजूद और हैसियत बनाने के लिए भारत के बारे में कमेंट करते रहना जरूरी है, परंतु भारत को इस समय अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार विश्व की सभी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी देनी होगी, जो मोदी जी के संबोधन में मुझे लगता है कि आज दिखेगी। कमर चीमा साहब, कितनी धड़कनें आपकी तेज है, क्योंकि पोल खुलेगी, मुझे पता है आप फिर वही प्रोपेगेंडा और उसी में उलझेंगे, लेकिन क्या ऐसे मंच का गलत उपयोग करके प्रोपेगेंडा जो फैलाने, कभी इस्लामोफोबिया पर रोने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं, मतलब कितने असहाय, बेबस और बहुत ही नेगेटिव तस्वीर इमरान खान की बन रही है। पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहता हूं कि अगले 100 साल भी आपका और हमारा मुकाबला है। चीन के आप पासकूब की भी नहीं है, चीन के तो आप नजदीक भी नहीं जा सकते। आपको चीन की ताकत का पता है, वो तो एक और दुनिया में, वो तो अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। आप साउथ एशिया में 150 करोड़ की आबादी, जिसमें से 60% लोग तो $2 a डे पे गुजारा करते हैं इंडिया में। आप कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? ये 4 शहरों में 6 रोशनियां लग गई, आपकी हवा बिगड़ गई। और जो अमेरिका में काम कर रहे हैं वो इंडिया से पढ़ के अमेरिका नहीं गए, वो पैसे कमाने वहां पे गए। उन यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप पे अमेरिका ने स्कॉलरशिप दी है, उस पे पढ़ के वहीं पे उन्होंने रख लिया। आपका क्या कमाल है? वो तो बेचारे यहां से भाग गए, इंडिया में भूख थी तो वो चले गए, और आप कह रहे हैं वो भारतीय है। वो अमेरिकन इंडियन है डॉक्टर साहब।
अभी आप लोग मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी गए वाशिंगटन में मिलने, आप बाहर ढोल पीट रहे हैं। किस चीज का ढोल? वहां तो 190 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर लेवल के लोग हैं। किस मुल्क की अवाम वहां ढोल पीट रही है? किसी की भी नहीं। इतनी छिछोरी हरकतें बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, जैसे नरेंद्र मोदी जी की शादी हो रही है वाशिंगटन में कहीं पे किसी मैरिज हॉल के बाहर आप लोग खड़े हैं और गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं। भाई आपकी अपनी तरक्की बताओ, मुझे बताओ कि जिस मुल्क में 60-70% लोग और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल कहता है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है, 4 माह पहले पापा न्यू गिनी से लेके मार्शल आइलैंड तक दुनिया के हर मुल्क से आपने एड ली और आप यहाँ पे लोग सड़कों पे मरते थे इंडिया में, और आप कहते हैं हम अफगानिस्तान को एड देते हैं। हमारा मुकाबला चीन से है, आपका मुकाबला अफ्रीका के कांगो से होना चाहिए। एक सेकंड जरा आवाज इनकी नीचे कीजिए। कमर जी, वैसे तो सुनने की आदत आपकी बड़ी कम है, लेकिन जरा आपको बता दें, क्वाड मीट ने भारत ने 8 मिलियन डोजेस वैक्सीन कमिट किया है गरीब मुल्कों के लिए। जिस तरह के बड़े कदम हिंदुस्तान उठा रहा है उसकी प्रशंसा पूरे मुल्क में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, और आप इस तरह की बातें करें। मुझे लगता है सुधांशु जी एक जवाब उनको दीजिए, फिर चर्चा को आगे लिए चलेंगे, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कौन कहां पर खड़ा है, किसका कद कहां पर जाकर अटक जाता है, और कौन एक ऊंची उड़ान उड़ता हुआ आज विश्व में दिख रहा है। सुधांशु जी देखिए, कमिट सीमा जी के जवाब में जो शिद्दत नजर आई, अरे भाई जब आपके आका के ऊपर बात उठेगी तो आपको ये लगेगा कि बहुत गलत हो रहा। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं जनाब, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितनी इंडियन कंपनीज लिस्टेड हैं वो चाइनीज कंपनीज से कम नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले तक तो चाइना से ज्यादा इंडियन कंपनीज लिस्टेड थी। दूसरी बात, अरे भाई आप चाइना के डाटा पे क्या भरोसा करते हैं? पूरी दुनिया में कोविड फैल गया, 100 से 200 देशों में फैल गया, मगर कहां बीजिंग और शंघाई तक नहीं पहुंच पाया वुहान से। आपको यह डाटा रिलायबल नजर आता है? अरे जनाब, अभी कल ही उनकी सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की एवरग्रांडे, उसका पूरा क्रैश हुआ है, जो कि लीमन ब्रदर्स के 2008 के इक्विवेलेंट माना जा रहा है। आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा? लास्ट ईयर अलीबाबा वाले जैक मा $28 बिलियन का सबसे बड़ा इशू लेके आ रहे थे, अचानक वो गायब हो गए। तो भैया उन देशों में क्या होता है वो तो जब होने के बाद जब सब कुछ हो जाता है तभी पता चलता है। हां, आपके मुंह से जो एक बात निकल गई थी, इमरान खान के मुंह से और आपके मुंह से भी निकल गई, आरएसएस वाली बात। ये बताइए, जिस न्यूयॉर्क में खड़े हैं इसमें 9/11 हुआ था, वो क्या आरएसएस ने करवाया था क्या? यह बताइए, श्रीलंका में चर्चों में बम विस्फोट हुए, पकड़ पकड़ के पाकिस्तानी निकाले गए, वो आरएसएस ने करवाया था। म्यांमार में बुद्धिस्टों से लड़ाई हो रही, वो आरएसएस करवा रही थी। ढाका के अंदर जो मॉल में आतंकवादी हमला हुआ, सीधे बांग्लादेश ने कहा पाकिस्तान कहां थे, वो आरएसएस ने कराया था। काबुल के अंदर धमाके हुए, वो आरएसएस करा रहा था। और आपके चचा शी जिनपिंग के इलाके में जो वहां पर यूगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, सिकांग प्रोविंस में लड़ाई कम्युनिस्टों से, वो आरएसएस कर रही है। चेचेनिया में लड़ाई रूसियों से, वो आरएसएस कर रही है। बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई, वो आरएसएस कर रही है। और सोमालिया इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई, आरएसएस कर रही है। फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई, वो आरएसएस कर रही है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में धमाके हो रहे हैं, वो आरएसएस कर रही है। सिडनी से लेकर और न्यूयॉर्क के 9/11 तक आरएसएस कर रही है। अरे जनाब, हकीकत क्या है और आप देखना क्या चाह रहे हैं? कम से कम इमरान खान को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आप काबुल को लेके बात कह रहे हैं, तालिबान को लेके, अमेरिका की क्या गति हुई अफगानिस्तान में जाके, वो आपने देखी। उससे पहले रूस की क्या गति हुई तो आपने देखी। तो पाकिस्तान की तो हैसियत ही क्या है, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह आपकी नजर का फेर है। तो इस वक्त तस्वीरें हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बोलने वाले हैं। सभी को इंतजार है वहां पर जब वो आज अपनी बातें कहते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। वैश्विक तरीके से जिस तरह से एक दखल अंदाजी हमने चीन की भी बीते दिनों देखी है, उसको काउंटर करने के लिए भी क्या कुछ संकेत प्रधानमंत्री वहां पर देते हैं, सबकी नजर इस मंच पर आज है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसमें प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद बोलने वाले हैं। पाकिस्तान का इससे पहले कहना, और पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर एक तरह से जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा वो बार बार उठाता है, उसके आतंकवाद के मुद्दे पर आज पीएम मोदी जरूर घेरेंगे। सभी को इंतजार है कि आज इस मंच से पीएम किस सशक्त तरीके से पूरे मुद्दे पर बोलते हैं। जनरल कुलकर्णी, एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ। पीएम का आज इस मंच से कहा हुआ एक एक जो लफ्ज है, एक एक उनकी बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि टेररिज्म की एक बहुत बड़ी हम बहुत बड़ा बदलाव पूरे विश्व में देख रहे हैं। तालिबान में आतंकियों की सरकार बना ली है सब। ऐसे में
जिस तरह से एक चुनी हुई मतलब सरकार होती है जो लोकतंत्र के वैल्यूज भारत के हैं, बनाम तालिबान की सरकार वहां पर, पीएम का आज बोलना और पाकिस्तान को एक्सपोज करना सबकी नजर रहेगी। जनरल कुलकर्णी। कोई शक नहीं अंजना जी, मैं मानता हूं, और मैं खासकर जिस तरीके से राइट टू रिप्लाई में हमारी महिलाओं ने लगातार 2 बार मुझे लगता है पूरा पर्दाफाश कर दिया, इमरान खान को एक ऐसे जगह दिखा दी उसकी कि वो जो मंच है उसके ऊपर वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान अब आतंक का गढ़ बन गया है, इसमें कोई शक नहीं। ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 का आर्किटेक्ट है उसको वो माटिया कह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है प्रधानमंत्री जब आज यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे और खासकर जब कोविड के ऊपर बात करेंगे, टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे, मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारी स्नेहा दुबे ने जो जवाब दिया है वही काफी है पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए। पाकिस्तान बार बार यूएन रेजोल्यूशन की बात, शायद पाकिस्तानियों को मालूम नहीं है कि यूएन रेजोल्यूशन का पहला ही था कि पाकिस्तान ने अपनी फौज को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकालना था। अगर प्लेबिसाइट की बात करनी थी तो प्लेबिसाइट तो छोड़ो, जब 1972 में 93,000 PWs वापस करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो पे आ गए कि यूएन रेजोल्यूशन नहीं, हम बायलैटरली बात करेंगे। पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान को ये नहीं मालूम है उसका अस्तित्व क्या है, और यही कारण है कि पूरे विश्व भर में पाकिस्तान एक टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाना जाता है। आज पाकिस्तान खुद, प्रधानमंत्री अपने आप को तालिबान खान कहते हैं, खुद पाकिस्तान मानता है कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है सबसे ज्यादा आज पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान बार बार विश्व भर में जा रहा है कि तालिबान को आप एक मान्यता दे। क्यों मान्यता दे? उस मान्यता से क्या मिलेगा पाकिस्तान को? मान्यता से सिर्फ पाकिस्तान चाहता है मान्यता तालिबान। तालिबान कौन? वही हक्कानी नेटवर्क की बनाई हुई एक संस्था जो तालिबान के सहारे चल रही है काबुल के अंदर। चीन चाहता है कि सैंक्शन हटाया जाए। आप देखिएगा तालिबान, पाकिस्तान और चीन तीनों मिलकर के तालिचिस्तान चाहते हैं। विश्व देख रहा है कि ये अफगानिस्तान को बर्बाद करने में लगा हुआ है ये देश, और पाकिस्तान खुद जब आतंक का गढ़ है, सारे आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं। और आज अगर पाकिस्तान का अगर प्रवक्ता ये कहते हैं कि बौखलाए हुए हैं, जिस प्रकार से जिस भाषा की वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भी कि बहुत साने आदमी है वो, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे कि बिल्कुल ही पाकिस्तान ने खुद अपनी औकात समझनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमें खुशी होती है अगर पाकिस्तान अच्छा करे, पर पाकिस्तान सिर्फ आतंक और कुछ नहीं कर रहा है सिवाय आतंक के। यही कारण है कि पाकिस्तानी भी बौखला गए, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसा देश बन गया है, कैसी उनकी छवि है पूरे विश्व भर में, एक आतंक की छवि। और पूरा विश्व, कितना भी इमरान खान कह ले हम, और जिस तरीके से वो भाषा इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन राइट खुद देखा है उन्होंने, ह्यूमन राइट पाकिस्तान के अंदर क्या है उन्होंने खुद देखा है, किस प्रकार से इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, अब 10 मिनट का इंतजार है सर। 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री का भाषण यहाँ पर संबोधन शुरू हो जाएगा। एक बार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कौन कौन सी बड़ी बातें आज सुनने के लिए इंतजार करें? मुझे पता है प्रधानमंत्री बोलेंगे उस वक्त हर कोई सुनेगा, लेकिन जो बड़ा खाका हिंदुस्तान की नीतियों का, उसकी सोच का है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी भारत की वर्तमान वैश्विक स्थिति को ध्यान के रखकर विश्व के सभी विषयों के संदर्भ में बोलेंगे, जिसमें सुरक्षा का विषय भी होगा, जिसमें रणनीतिक साझेदारी का विषय भी होगा, जिसमें देश के सभी देशों को एक समान रूप से अपने कार्यकाल और कार्यक्रम और विकास के कार्य करने का मौका मिले, विशेषकर जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसका भी उल्लेख होगा। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद के कालखंड में किस प्रकार से स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाएं बदल रही हैं, उनका उल्लेख होगा। भारत के छोर पर जो सुरक्षा की स्थिति है उसका भी निश्चित रूप से संकेत होगा, और पर्यावरण या जलवायु संबंधी विषयों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसमें संकेत होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे भारत इस समय दुनिया के एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश में से एक है, और जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे, और मोदी जी का अपना एक विजन है, मोदी जी हर चीज के बारे में एक बहुत दूर और गहन दृष्टि रखते हैं, तो उस सब की छाप हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह देना चाहता हूं, जैसे कमर चीमा जी कह रहे थे ना कि हमारा और पाकिस्तान का जो मुकाबला है ना, अंजना जी, एक मामले में हम लोग बराबर हैं। क्या बराबरी है? कि अमेरिका में भारतीयों को वीजा देने में भी कंजूसी होती है और पाकिस्तानियों को वीजा देने में भी।
मगर अंतर जानते क्या है? भारतीयों को वीजा देने में इसलिए कंजूसी होती है कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आ गए तो नौकरी पे खतरा है, और पाकिस्तानियों को वीजा देने में इसलिए कंजूसी होती है, बहुत खतरनाक लोग हैं, आ गए तो जान पे खतरा है। तो हमारे जाने से नौकरी पे खतरा, आपके जाने से जान पे खतरा। बस यही अंतर है हमारे और आपके ईमान में, और यही अंतर है हमारे और आपके दुनिया में स्थान। तो यूनाइटेड नेशंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पीटीआई की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से उनका इंतजार हम लोग कर रहे थे। अब हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब जुड़ गए हैं। आरिफ अब्बासी साहब, आज पाकिस्तान के एक्सपोज होने का दिन है। प्रोपेगेंडा के खिलाफ आज गर्मजोशी से प्रधानमंत्री, अब कुछ मिनटों का इंतजार है क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे, उसी में पोल खुल जाएगी पाकिस्तान की और इमरान खान की। देखें, ये आप लोग का अपना एक सोचने का अंदाज है। पाकिस्तान, जैसा कि हम समझते हैं कि अमन में, तरक्की में दुनिया का पार्टनर है, और इस वक्त जो हुकूमत मोदी सरकार इंडिया में है, बरसर इक़्तिदार है सेकंड ट्रिप में, उसमें आरएसएस हो या गुजरात का कत्लेआम हो या मुसलमानों के साथ जुल्म हो या फिर अपने पड़ोसियों के साथ हो, कश्मीर में हो, ये मकरू चेहरा जो इंडिया का दुनिया के सामने है, इसका दिफा करना बड़ा मुश्किल होगा। मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि दुनिया के सामने जो खेलते थकते नहीं क्या आप लोग? नहीं, देखें मेरी बात सुने, इस टाइम दाइश हो, ISIS हो या TTP हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, इन सब की फंडिंग इंडिया करता रहा है। 3-4 अरब डॉलर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में और इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इंडिया का जो ये चेहरा है, ये बड़े अरसे से पिछले हुक्मरानों ने छुपाया हुआ था, लेकिन मोदी के सरकार के आने से, बीजेपी सरकार के आने से वो हमें हिटलर की और नाजी नजरिए की याद ताज़ा हो गई है। इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तो कहते हैं आप लोग इंडिया को, लेकिन इंडिया में जो दलित हैं, जो सिख हैं, मुसलमान हैं, बाकी मिनॉरिटीज हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसमें और आपके बयानी में बड़ा फर्क है। और दुनिया समझती है कि इस टाइम इंडिया का वजूद पूरी इंसानियत के लिए, पूरे इस न सिर्फ खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और फिर इंडियन आर्मी के पास तस्वीरें आ रही है, सर आपको टोक रही हूँ बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बोलने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जहां पर प्रधानमंत्री का अब से कुछ ही लम्हों में संबोधन शुरू होगा। आज की तारीख में वो पहले व्यक्ति हैं जो इस मंच से बोलेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर वो क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ने जो बीते दिन इमरान खान ने जम्मू कश्मीर का राग छेड़ा है, क्या कुछ उस पर पीएम का कम से कम सांकेतिक रूप से पीएम क्या कहते हैं? एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आज वो इस मंच से क्या कहते हैं? तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी है, इन सब पर नजर है। और यूनाइटेड नेशंस की आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बस सबसे कुछ ही लम्हों में होने वाला है। 6:30 बजे भारतीय समयानुसार उन्हें बोलना है और सभी को अब इंतजार है पीएम के इस भाषण का। आपको बता दें, लगभग 6:30 बजे आपके टाइम के अनुसार, तो अब 6:25 हो रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में इस वक्त सुबह का वक्त है लगभग, और 8:55 का वक्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे आतंकवाद के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर, कैसे वैश्विक रूप से जो हम अलग अलग जगहों पर आतंकवाद देख रहे हैं और उसको पनपता हुआ देख रहे हैं, आतंकियों की, तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बन गई है, बहुत सारे बदलाव ग्लोबल मंच पर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद उस पर बोलने वाले हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आज पूरे विश्व की नजर होगी कि क्या भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरेगा, क्योंकि UNGA के रहते हुए द्विपक्षीय बातचीत भी पीएम की जो बाइडेन से हुई है और उसके बाद आज उनका ये संबोधन है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से भारत ने अनेक मंचों पर अपने को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया है। मैं यहां याद करता हूं, 2014 में हमारी सरकार आई, बाली में WTO की समिट थी। हमने वहां पर जो किसान विरोधी फैसले थे, हम अड़ के खड़े हो गए। भारत के ऊपर आरोप लगा कि भारत उसको डिस्टर्ब कर रहा है, मगर हमने उसको नहीं माना। सिडनी में 2014 में G20 की समिट हुई, काले धन का विषय हम उसमें पहली बार लेके आए। आप याद करिए, अभी ब्रिक्स की समिट हुई,
2016 में याद करिए एनवायरमेंट के ऊपर अमेरिका का स्टैंड कुछ और था पेरिस में, मगर मोदी जी ने बिल्कुल अलग स्टैंड लिया और आखिर में दुनिया ने मोदी जी के स्टैंड के बारे में समर्थन किया। अभी ब्रिक्स में आपने देखा कि पुतिन ने अपनी तरफ से, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी तरफ से यह बात आतंकवाद का विषय यहां पर रखा। उसी प्रकार आप ये देखिए कि विश्व के भिन्न भिन्न मंचों पर, शंघाई कॉरपोरेशन में भी आतंकवाद का विषय आना पड़ा। इसी संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसमें आज मोदी जी बोलने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर एक लाइन का भी प्रस्ताव लाने में वो सफल नहीं रहे। तो मोदी जी के आने के बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की कूटनीतिक स्थिति में आया है, जिसकी स्वीकार्यता तमाम इन देशों के थिंक टैंक भी करते हैं। अब मैं पाकिस्तान के थिंक टैंक को तो क्या यूज करूं, मैं सिर्फ कमर चीमा जी से कहूंगा अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान की सेनेट में उनकी कमेटी ऑफ होल की जो रिपोर्ट सबमिटेड है उसको वो पढ़ लें तो उसमें समझ में आता है कि मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान क्या महसूस करता है। और 2018 में चाइना में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज नाम के थिंक टैंक के वाइस चेयरमैन ने साफ साफ ये लिखा है कि मोदी जी के आने के बाद भारत डिप्लोमेटिकली बहुत मजबूत हो गया है। और 2020 में उन्होंने ये तक लिखा है कि इस समय चाइना, आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, आखिरी कुछ मिनट, क्योंकि अब 2 मिनट के बाद प्रधानमंत्री यूएन पहुंच चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वो बोलने वाले हैं। वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आज इस यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से जो कुछ कहते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर तालिबान की सरकार, बहुत बड़े बड़े बदलाव और परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमने अनुच्छेद 370 हटाया और उसके बाद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक ट्रांजिशन हुआ है, उसको लेकर बौखलाहट जो है वो सामने आई। बौखलाहट पाकिस्तान की, बौखलाहट इमरान खान की। बीते दिन उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, तो दूसरी तरफ भारत ने राइट टू रिप्लाई मांगा है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बोलते हैं तो सबकी नजर रहेगी, अब से कुछ मिनट में वो बोलेंगे। माना जा रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर और खास तौर पर यूएनजीए के उनके भाषण के पहले उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से। इसी के साथ क्वाड मीट में वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से मिले हैं। तो एक बहुत बड़ा नजरिया हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का होराइजन बहुत बड़ा है। आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरह से प्रधानमंत्री आज अपनी बात रखते हैं, कैसे तालिबान की सरकार में यूएन के डेजिग्नेटेड जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं उनका नाम शामिल है, इन तमाम मुद्दों को वो इस मंच पे किस तरह से उठाते हैं, सबकी इस बात पर नजर रहेगी। तो एक तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर बाद संबोधन होने वाला है। सबकी नजर इस बात पर है कि आज वो इस मंच से क्या कहते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या होता है उनका जवाब इमरान खान के उस आरोप को जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को छोड़ा है। इन सब पर नजर रहेगी। मुझे लगता है कि आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और फिर प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा, क्योंकि ये सच है कि जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय जो बातचीत थी उस पर सबकी नजर थी, लेकिन इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस में आज क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ग्लोबल नजरिया होगा इंडिया का, और क्या भारत एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर अपनी तस्वीर बना पाता है, अपनी छवि बना पाता है, इन सब चीजों पर लोगों की नजर रहेगी।